Good afternoon, everyone. We are doing rational numbers and we have started it. We have known the basic concept of rational numbers and about the equivalent rational numbers. In today's class, we will try to study some pattern among rational numbers, that how to study the pattern and how to find the next rational number in that pattern. And second thing, we will try to find some rational numbers between two rational numbers. This is very important. The second thing I told you, that how to find the rational numbers between two rational numbers, because it will be used in higher classes also. So in today's class you need to understand each and everything very carefully. So we will start. Let's start with question number 1. Question number 1 is list 5 rational numbers between -1 and 0. These are two rational numbers, because -1 ko we can write 1 by -1 upon 1, so it means it is a rational number. Then second part is -2 and -1. These are also rational numbers, but we have to find 5 rational numbers between these two rational numbers, third part and fourth part. So how we will find? Let's do that. Again, in question number 2 I will directly do the answers. So let's read the question. What is the question? Write 4 more rational numbers in each of the following patterns. आपको ये patterns given है, आपको इसको अच्छे से study करना है pattern को, that what should what does this pattern actually, how this pattern is going on, and just studying or observing the pattern you can just find the next 4, even 5, 6, 7, how many rational numbers after these numbers. So we will start this. One more thing, in this question I want to say that this fourth part, if you will look in your book, that is -2/3. This was by mistake, it was printed, so just make it across. It is not at all the question is 2 upon -3, 4 upon -6, 6 upon -9, only these three numbers, and then you will study the pattern and find the next 4 rational numbers in this pattern. So I will do question number 1 first part. अब question number 1 first part क्या है? -1 and 0, आपको इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि इफ़ द नंबर्स आर इन नॉट p अपॉन q फॉर्म, तो आपको उसको p अपॉन q फॉर्म में लिखना है. बिकॉज किसी भी नंबर में जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, वी फाइंड दैट देयर इज़ 1 इन द डिनोमिनेटर. सो मैंने और लिख के इनको एक्चुअल में p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है, -1 अपॉन 1 एंड 0 अपॉन 1. ठीक है. सेकेंड थिंग, अब हम क्या करते हैं, हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, वेदर यू आर गोइंग टू क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, एनीवेयर, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपसे 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो यू विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर बाय 6. अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? बिकॉज देखो, डिनोमिनेटर तो इक्वल है, सो वी कैन से दैट दीज आर लाइक रैशनल नंबर्स, लाइक फ्रैक्शंस. आपने पढ़ा था जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, सिमिलरली देयर डिनोमिनेटर इज सेम, सो दे आर लाइक रैशनल नंबर्स. पर प्रॉब्लम ये है कि 0 एंड -1 के बीच में कोई नंबर होता ही नहीं है, कोई इंटीजर नहीं होता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट दिस इज p एंड दिस इज q, एंड p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं. तो अगर हम रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं तो वो सब में न्यूमरेटर में इंटीजर ही तो होना चाहिए, बट 0 एंड -1 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं होता है, अगर आप नंबर लाइन भी ड्रॉ करो तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा. उसको बढ़ाने का क्या तरीका होता है, हमें जितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, हम उससे एक 1 मोर या 1 बिगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर मुझे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 6. ठीक है. तो अब मैंने न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट -6 अपॉन 6. सिमिलरली 0 अपॉन 1 को भी मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर में 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 0, 6 1s आर 6. सो बेसिकली अब मेरे पास फिर से देखो, डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो चुका है, एंड अभी नंबर न्यूमरेटर में मेरे पास 0 एंड -6 है.
इट मीन 0 एंड -6 के बीच में काफ़ी नंबर्स हैं जो मैं लिख सकती हूँ. दैट इज़ -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5. ऑल दीज नंबर्स आर इन बिटवीन 0 एंड -6. बट डिनोमिनेटर क्योंकि 6 है तो वो डिनोमिनेटर आपको 6 तो रखना ही पड़ेगा सब में. सो माई बेसिकली 5 रैशनल नंबर्स आर -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6. So it is easy to find 5 rational numbers, even 7 rational number, 10 rational numbers. How many rational numbers you want to find? You just have to multiply one bigger number by numerator and the denominator. ठीक है, तो अभी ये मेरे 5 rational numbers आ चुके हैं. अब आपको वीडियो पॉज करनी है and do question number 1 second part. Let's solve one more part. This is third part. Third part में क्या है, -4/5 and -2/3. ठीक है, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इसमें डिनोमिनेटर तो है, ये ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है. तो किसी भी नंबर को फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम तो आपका होना चाहिए कि आपको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, लाइक रैशनल नंबर्स बनाने हैं, जस्ट लाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. अब आपको याद होगा कि हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते कैसे थे, एलसीएम फाइंड आउट करते थे. तो हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट किया 5 and 3 का. ठीक है, 5 and 3 का मैंने ये राइट साइड में एलसीएम निकाला हुआ है, 3,5, फिर 3 का टेबल पड़ा, 3 1s are 3, क्योंकि 5 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, 5 मैंने लिख दिया एज इट इज़. अब क्योंकि ये 1 हो गया, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ 5 नाउ, सो आई विल रीड 5's टेबल. तो 5 1s are 5, ये तो 1 एज इट इज़ रहेगा. जब भी मेरे पास 1 1 आ जाता है, आई स्टॉप हेयर. ना आई विल मल्टीप्लाई यहाँ पे जितने भी नंबर्स मुझे मिलते हैं. 5 3s are 15, सो दिस इज़ माई एलसीएम. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल लेकर आना है. वो कैसे आएगा, 5 को 15 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके. तो मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो. सिर्फ डिनोमिनेटर तो नहीं कर सकते, इम्बैलेंस हो जाएगा. सिमिलरली अगर मुझे 3 को 15 बनाना है, व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस 3/5. ठीक है, 3 5s are 15. सो सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर हो रहा है तो न्यूमरेटर भी होना चाहिए, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑल्सो. सो हेयर आई गॉट -12/15 एंड फॉर सेकेंड रेशनल नंबर आई गॉट -10/15. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ ध्यान से देखो दो रैशनल नंबर्स कौन से आ गए हैं, -12/15 एंड -10/15. दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है. मुझे अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. बट एक्चुअल में -10 एंड -12 के बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर होता है, दैट इज़ -11. तो इसका मतलब मुझे तो 5 नहीं मिल सकते. फिर क्या करेंगे, वही सेम चीज़ जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, मुझे जितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उससे 1 बिगर नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. तो क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, तो मैंने ऊपर भी एंड नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया. आई गॉट -72/90. ठीक है, एंड सेकेंड नंबर को जब किया -10/15 को 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन आई गॉट -60/90. अभी फिर से मेरे पास डिनोमिनेटर्स इक्वल ही हैं एंड -60 एंड -72 इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. वी कैन राइट एनी 5 अमंग देम. सो आई कैन राइट -61/90, -62/90, -63/90, -64/90, -65/90. even many more numbers you can write, but आपको सिर्फ 5 फाइंड आउट करने हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 5 ओनली. अब डिनोमिनेटर तो रहेगा ही रहेगा, उसको लिखना भूलना नहीं है. 90 फाइनली मेरा डिनोमिनेटर बना था, तो आई विल राइट 90 है. सो इट मीन्स -4/5 एंड -2/3 के बीच में दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स विच यू कैन राइट easily. Now pause the video and do question number 1 fourth part. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पे हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना था एंड उस पैटर्न में ही नेक्स्ट 4 नंबर्स रैशनल नंबर्स और लिखने थे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे किया है। मेरे पास पैटर्न ये था -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। ठीक है, अब मैं अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखूँ तो न्यूमरेटर में हर जगह पे माइनस माइनस है। इट मीन्स न्यूमरेटर तो नेगेटिव ही रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, नंबर्स पे अगर मैं ध्यान दूँ, दिस इज 3, देन 6, देन 9, देन 12। इट इज़ एक्चुअली 3 का टेबल। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो अभी 3 का टेबल आगे बढ़ते जाएंगे हम। 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21 एंड 3 8s are 24। सो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, 5 10 15 20। दिस इज अगेन 5 का टेबल। सो आई विल राइट 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40। so this is how I found my next 4 rational numbers for the पैटर्न गिवन। ठीक है, ये जो पैटर्न मुझे गिवन है इसके मुझे नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स बड़े इजीली मिल गए। नाउ pause this video here, do question number 2 second part। coming to question number 2 third part। आप क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, दैट इज -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। अगर इस पैटर्न में मैंने ध्यान से देखा तो फर्स्ट नंबर तो नेगेटिव है, जब फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर नेगेटिव है, वाइल अदर्स का डिनोमिनेटर नेगेटिव है। लेकिन हमने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है या फिर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, बोथ आर सेम। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि ये माइनस एक्चुअल में ऊपर भी रहा होगा, तो एग्जैक्टली सेम है। तो माइनस जो है वो फिलहाल मैं डिनोमिनेटर में ही रखूँगी सब जगह 4 नंबर्स का। सेकेंड थिंग, अब मैं न्यूमरेटर ऑब्जर्व करूंगी 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर्स क्या होने चाहिए, 5 6 7 8 सिमिलर। अब मैं डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करती हूँ तो 6 देन 12 देन 18 देन 24। दिस इज एक्चुअली 6 का टेबल। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। तो अभी नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48। so this is how I got the pattern। so now by observing the question number 2 and fourth part, observe that pattern and do that।